Assalamu alaikum. Today we're going to discuss about the categorical imperative or the moral philosophy of Immanuel Kant. So let's discuss about the moral philosophy of Immanuel Kant. It is also known as the deontology, जिसमें हम ड्यूटी की बात करते हैं कि everything you need to do right because it's your duty. So he's an 18th century philosopher and he argued that supreme principle of morality is a standard of rationality. Morality का जो supreme principle है वो rationality के standard है, यानी that dubbed as the categorical imperative, उसको उन्होंने categorical imperative की बात कर दी है. Immanuel Kant का ये ethics भी हो सकता है, ठीक है. ethics जब ethics का question आए या moral philosophy का question आए या categorical imperative का, you have to write such things, ठीक है. यही में सब कुछ है, यही ethics है, यही moral philosophy, and this is the categorical imperative. So according to him, CI roots morality in humanity's rational capacity and asserts certain inviolable moral laws. He formulates deontology and he argues that to act in a morally right way, people must act according to duty. And it is the motives of the person who carries out the action that make them right or wrong, not the consequences. एक बंदे का motive क्या है? Means justifies the ends, ठीक है? Means justify the end. So आपने बंदे का मोटिव देखना है कि मोटिव क्या, ना कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कि लाइक अगर आप सच बोल रहे हैं तो सच से आप पकड़े जाएंगे, नहीं, आपने सच बोलना है. क्यों? क्योंकि आपका मोटिव है कि आप हो सकता है सच बोल के अगले को बचा लें, ठीक है. झूठ बोल के अगर आप हो सकता है अगले को फंसा दें. So he characterized CI as an objective, rationally necessary and unconditional principle that we must always follow despite any natural desires or inclination we may have to. On the contrary, okay, all specific moral requirements are justified by this principle, which means that immoral actions are irrational. Moral actions वो हैं जो कि rational हैं, immoral वो हैं जो कि irrational हैं. And he believed कि हमें हर हाल में, despite any natural desires, हमें हर हाल में ही morally true acts करने चाहिए. The other philosophers of Hobbes, Locke and Aquinas, they also argued the moral requirements are based on standards of rationality. ठीक है, उनके भी यही है कि standard of rationality पे moral requirements based करती हैं. These standards were either instrumental principles of rationality for satisfying one's desire, जिस तरह हॉब्स ने कहा था, जिस पे social contract theory बन गई थी, या external rational principles होंगे that are describable by the reason, जिस तरह लॉक और एक्वाइनस कहते हैं. सो कांट भी इनसे एग्री करते हैं. द एनालिसिस ऑफ प्रैक्टिकल रीजन रिवील्स द रिक्वायरमेंट दैट रैशनल एजेंट्स मस्ट कंफॉर्म टू द इंस्ट्रूमेंटल प्रिंसिपल्स, कि जो उनके रैशनल एजेंट्स हैं वो इंस्ट्रूमेंटल प्रिंसिपल से कंफॉर्म करते हों. रैशनल एजेंट्स जो कि एक्वाइनस और लॉक के थे और इंस्ट्रूमेंटल प्रिंसिपल्स जो के हॉब के थे. तो एक इनमें उन्होंने कहा है कि ये दोनों एक दूसरे से कंफॉर्म करते हो. So this argument was based on a striking doctrine that a rational will must be regarded as autonomous. अब rational की जब वो बात करें तो उन्होंने कहा है कि उसे autonomous होना चाहिए या free होना चाहिए, ठीक है. It must not be bounded by the law. Fundamental principle morality का वो कहते हैं कि it's the law of an autonomous will, ना कि जो laws हमें bind कर रहे होते हैं, bound करते हैं, वो नहीं. फ्री विल पे, कि आप अपनी फ्री विल से सही और गलत में फैसला करें, आप अपनी फ्री विल से जो है अच्छे काम करें, अपनी फ्री विल से वर्च्यू गेन करें. So Kant's moral philosophy is a conception of reason whose reach in practical fact goes well beyond that of human slave to the passions. It is the presence of the self-governing reason in each person that Kant thought offered decisive grounds for viewing each as opposed of equal worth and deserving of equal respect. Simply stated, categorical imperative क्या है? One should only act in such a way that one could want the maxim. मैक्सिम क्या है? मोटिवेटिंग प्रिंसिपल. आप वही काम करें जिससे आपको मोटिवेशन मिल रही है, ठीक है. और
लोगों को आपसे मोटिवेशन मिल रही है, ठीक है। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो लोगों को आपसे सही की मोटिवेशन, अगर गलत करेंगे तो गलत की मोटिवेशन मिलेगी, तो वो आपका एक यूनिवर्सल लॉ बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप के पास एक दिन you don't have money to buy food for one day, what do? You just go and steal the food. किसी एक स्टॉल से you steal the food. तो ये अगर आप अपने लिए जो चीज चुन रहे हैं, that means it will become a universal law कि आप जो है जब किसी के पास फूड नहीं है and he or she has to eat something, तो वो स्टील कर ले। ये यूनिवर्सल लॉ हो गया ना। तो इसके बारे में उन्होंने कहा है कि आप वही करें जिससे आप मैक्सिमम गेन कर सकें, मोटिवेटिंग प्रिंसिपल आप गेन कर सकें कि खुद को भी मोटिवेशन हो और अगले को भी मोटिवेशन हो। तो गलत काम नहीं करें, ठीक काम करें। योर एंड्स जस्टिफाई द मीन और योर मीन्स जस्टिफाई द एंड, ठीक है। ये एंड पे उन्होंने ये दो स्टेटमेंट्स आती है ना, एंड जस्टिफाई द मीन, कि अगर आपका सही रास्ते पे पहुंच गए हैं तो आपने ये नहीं देखना कि कौन से मीन्स आपने अपनाए। यू रीच योर डेस्टिनी, दैट मीन्स एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव, ठीक है। ये नहीं करना, आपने सही मीन्स अपनाने हैं, ठीक है। मीन्स टू एन एंड, कि आपके वो रास्ते ठीक हों, वो बीच में आपने इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो बीच में जो भी आपके हर्डल्स आ रहे हैं, ठीक है, वो दे शुड बी ट्रू, दे शुड बी राइट। ये नहीं है कि आप अपनी डेस्टिनी पे पहुंच गए एंड देन यू आर लाइक कि आपको बस अपनी डेस्टिनी पे रीच करना था, नो मैटर व्हाट, कि आप कैसे अपनी डेस्टिनी पे पहुंचे, आप बस पहुंच गए, नहीं। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, ये कांट इस चीज पे बहुत स्ट्रिक्टली कि ही गिव्स यू अ रूल ऑफ बुक, ठीक है, और ही गिव्स यू रूल्स, सेट ऑफ रूल्स वो आपको देते हैं, ठीक है। रूल बुक देंगे या सेट ऑफ रूल्स देंगे कि आपको यही फॉलो करने हैं, और वही जो आप फॉलो करें वही आपके यूनिवर्सल लॉज बन रहे हैं। इफ यू स्टीलिंग समथिंग, वो यूनिवर्सल लॉ बन गए। अगर आप कुछ सेट ऑफ रूल्स है उसने आपको दिए हुए कि ये आपको करने हैं, ठीक है, तो आपने उन्हीं को फॉलो करना है, नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज। आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बंदे को घर पे कोई आता है, ठीक है, पुलिस आती है घर पे, ठीक है। अब उस बंदे की वाइफ जो है ना, यहाँ पे वो बंदा है, इस घर में वो बंदा है, दिस इज द डोर ऑफ द हाउस। अब यहाँ पे उसकी वाइफ खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे उसकी वाइफ खड़ी है और यहाँ पे पुलिस खड़ी है बाहर। पुलिस आती है, वाइफ कह देती है जी कि वो साहब जो ABC साहब जो भी हैं वो तो घर पे नहीं है। अब क्या औरत का मोटिव है कि वो अपने हस्बैंड को बचा ले पुलिस से, ठीक है। इतने में जब उस बंदे को पता लगता है ना, ABC बंदे को, कि जी पुलिस आई है डोर पे, तो वो बैक डोर से निकलने की कोशिश करता है, वो बैक डोर से निकलने की कोशिश करता है। पुलिस को जब पता लगता है कि अच्छा वो बंदा घर पे नहीं है, वो लोग भी निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चलो अच्छा हम भी जा। इधर से ये पुलिस जा रही है, ठीक है, इधर से ये बंदा आ रहा है। अब क्या है, इसने इसको पकड़ लिया, पुलिस ने इस बंदे को देख लिया, आमना सामना हो गया, इसने इसको पकड़ लिया, ठीक है। अब औरत ने क्या किया कि औरत ने बचाया है अपनी तरफ से, लेकिन उसको बचा नहीं सकी। तो कांट कहते हैं कि इसमें इसको जो है ना झूठ नहीं बोलना चाहिए था। क्यों? कांट कहते हैं कि उसको कहना चाहिए था कि औरत को कहती कि पुलिस आप तलाशी ले लें घर में, वो घर पे ही है, ठीक है। जब वो ये कहते ना कि वो घर पे हैं, तो पुलिस आती, पुलिस अंदर उसकी तलाशी लेती, ठीक है, वो यहाँ पे देखती, इधर देखती, आगे जगह जगह देखती। तो इतने में क्या होता कि पुलिस, क्योंकि वो अंदर जा चुकी है, तो ये बंदा बाहर से एस्केप कर सकता था, जो कि एस्केप नहीं हो सका जस्ट बिकॉज कि उसने उसको गलत बयानी की है। तो यहाँ पे कांट कहते हैं कि वो झूठ बोल के उसने उसकी जान बचाने की कोशिश तो की है लेकिन बची नहीं है। वो सच बोल के उसकी जान बचा सकती थी, जो कि उसने नहीं बचाई। तो ये कांड का है कि आप सच बोलें, सच जो है वो, या आप सही काम करें, वो काम जो आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं, जो आपको गलत चीजों से बचाते हैं। और वही चीजें अब सच बोलेंगे या मॉरल ट्रूथ को अपनाते हैं या मॉरली राइट चीजों को अपनाते हैं, तो दिस विल लीड टू थिंग जो कि आपकी यूनिवर्सल लॉज में, जिसमें उन्होंने कहा है ना कि अब देखें, अगर ये औरत सच बोल रही है
तो ये यूनिवर्सली ट्रूथ हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाएगा, तो हर बंदा सच बोलेगा। अगर ये कोई गलत काम इसने झूठ बोला है तो हर बंदा यही करेगा कि किसी को बचाने के लिए वो झूठ ही बोलेगा। सो ये कांट की फिलोसफी है कि वो इस तरह इसको रैशनल को मानते हैं कि मोरालिटी को वो रैशनैलिटी के साथ लेकर आते हैं। ठीक है, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव इतना ही था। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो डू आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।